منٹو میاں ہمارے محلے کے ایسے مشہور آدمی تھے کہ اگر کسی دن محلے میں ہنسی کی آواز کم ہو جاتی تو لوگ خود بخود منٹو میاں کے گھر کا رخ کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ منٹو میاں جہاں جاتے وہاں کوئی نہ کوئی مزاحیہ واقعہ ضرور ہو جاتا۔ عمر 40 سال، قد درمیانہ، سر پر ہمیشہ ذرا سا ٹیلا سا ٹوپی نما کیپ اور چہرے پر مستقل معصوم سی مسکراہٹ۔ عقل ان کی کبھی 40 سال کی ہوتی اور کبھی 4 سال کے بچے جیسی۔ انہیں نئی نئی چیزیں آزمانے کا بے حد شوق تھا، چاہے انہیں اس چیز کا صحیح استعمال آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ منٹو میاں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر بات فوراً سچ مان لیتے تھے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ موبائل کو چاول میں رکھ دو تو بیٹری ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ فوراً پورا فون چاول میں دفن کر دیتے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ رات کو فون تکیے کے نیچے رکھو تو خواب میں لاٹری کا نمبر آ جائے گا، تو منٹو میاں پوری امید کے ساتھ ایسا ہی کرتے۔ ایک دن ان کے بھتیجے دانش نے انہیں نیا اسمارٹ فون تحفے میں دیا۔ منٹو میاں نے ڈبہ کھولا تو ایسے خوش ہوئے جیسے کسی نے انہیں سونے کی اینٹ دے دی ہو۔ وہ فون کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بار بار دیکھنے لگے، کبھی اس کی اسکرین صاف کرتے، کبھی اس کے بٹن گنتے، اور کبھی کیمرے کے سامنے منہ بنا بنا کر دیکھتے۔ ارے واہ، اب میں بھی اسمارٹ ہو گیا، انہوں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہا۔ انہوں نے پہلی سیلفی لینے کی کوشش کی، مگر کیمرہ الٹا کھل گیا۔ پوری تصویر میں صرف ان کی ناک، آجی مونچھ اور ایک کھاک نظر آ رہی تھی۔ منٹو میاں چونک گئے۔ اللہ، یہ فون مجھے الٹا کیوں دکھا رہا ہے؟ کہیں اس میں کوئی جن تو نہیں بیٹھا؟ انہوں نے فوراً اپنے دوست چھنو کو فون کیا، جو محلے کا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی تھا۔ اوئے چھنو، مدد کر، میرے فون میں جن گھس گیا ہے، یہ میری ناک کی تصویریں بنا رہا ہے۔ چھنو زور زور سے ہنسنے لگا۔ منٹو میاں، وہ فرنٹ کیمرہ ہے، بس کیمرہ گھما دو۔ منٹو میاں نے موبائل کو الٹا سیدھا گھمایا، مگر تصویر پھر بھی عجیب آ رہی تھی۔ اچھا، یہ جن بلا ضدی ہے۔ چھنو نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ کیمرہ کیسے بدلتے ہیں۔ منٹو میاں نے جب صحیح تصویر دیکھی تو خوشی سے بول اٹھے، ارے واہ، جن بھاگ گیا۔ اب منٹو میاں کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ دنیا کی ہر چیز موبائل سے سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یوٹیوب کھولا، پہلی ویڈیو چلی، گھر بیٹھے ایک دن میں لاکھوں کمائی۔ منٹو میاں کی آنکھیں چمک اٹھیں، ارے یہ تو میرے لیے ہی بنی ہے۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہر لنک پر کلک کرنا شروع کر دیا۔ اچانک موبائل کی اسکرین پر رنگ برنگے اشتہار آنے لگے، عجیب آوازیں بجنے لگے، اور خود بخود گیمز کھلنے لگے۔ موبائل جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ منٹو میاں گھبرا گئے۔ اللہ، جن واپس آ گیا۔ انہوں نے موبائل بستر پر پھینک دیا جیسے وہ کوئی زندہ چیز ہو، پھر دور کھڑے ہو کر اسے دھوتے رہے کہ کہیں وہ اچھل کر ان پر حملہ نہ کر دے۔ اسی وقت ان کی بیوی رانی بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ منٹو میاں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بیگم، فون پاگل ہو گیا ہے، اس میں جن ہے۔ رانی بیگم نے فون اٹھایا، ایک نظر اسکرین دیکھی اور ہنستے ہوئے بولے، یہ اشتہارات ہیں، جن نہیں، تم نے غلط بٹن دبا دیے ہیں۔ منٹو میاں شرمندہ ہو گئے، مگر دل میں اب بھی تھوڑا سا ڈر باقی تھا۔ اسی شام منٹو میاں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی ویڈیو بنائیں گے اور یوٹیوب پر ڈالیں گے۔ جب سب لوگ فیمس ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ انہوں نے موبائل کو کرسی پر رکھا، کیمرہ آن کیا اور بڑے سنجیدہ انداز میں بولنا شروع کیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں منٹو میاں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ موبائل کے جن کو کیسے قابو میں رکھا جاتا ہے۔ بولتے بولتے وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ ہاتھ ہلایا اور موبائل کرسی سے نیچے گر گیا۔ ویڈیو بند ہو گئی، اسکرین پر کریک آ گیا۔ منٹو میاں نے موبائل اٹھایا، اس پر ایک لمبی لکیر دیکھ کر چیخ نکل گئی، اوہو، جن نے بدلہ لے لیا۔ رانی بیگم نے سر پکڑ لیا، یہ جن نہیں، تمہاری لاپرواہی ہے۔ منٹو میاں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ اسمارٹ فون واقعی بہت اسمارٹ ہے اور وہ ابھی اس کے سامنے بہت اسٹوپڈ ہے، مگر پھر بھی ان کا شوق کم نہ ہوا۔ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور دعا کی، اللہ، کل مجھے بھی اس فون کا ماسٹر بنا دینا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلے دن فون انہیں ایک نئی مصیبت میں ڈالنے والا ہے۔ منٹو میاں نے رات بھر موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے ہوئے یہی خواب دیکھا کہ وہ کسی بڑے اسٹیج پر کھڑے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے اور ہزاروں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ کوئی آواز آ رہی تھی، منٹو میاں لائیو ہیں۔ صبح کھاک کھلی تو سب سے پہلے انہوں نے موبائل نکالا۔ اس پر نوٹیفیکیشنز کی لائن لگی ہوئی تھی، لائکس، کمنٹس، شیئرز۔ منٹو میاں کی آنکھیں پھیل گئیں، ارے واہ، لگتا ہے میں واقعی اسٹار بن گیا ہوں۔ انہوں نے جلدی سے ویڈیو کھولی، پتہ چلا کہ کل جو موبائل گرنے والی ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی
वो खुद ब खुद अपलोड हो गई थी। इसमें मंटो मियां का संजीदा लेक्चर, फिर अचानक मोबाइल का गिरना और आखिर में उनकी घबराई हुई चीख शामिल थी। लोग इस वीडियो पर हंस हंस कर कमेंट्स कर रहे थे। एक लिख रहा था, ये अंकल बहुत प्यारे हैं। दूसरा लिख रहा था, ये जिन वाली बात जबरदस्त है। तीसरा बोला, अंकल को फिल्म में होना चाहिए। मंटो मियां खुशी से उछल पड़े। देखा बेगम, मैं फेमस हो गया। रानी बेगम ने ऐनक दुरुस्त करते हुए कहा, फेमस नहीं, मजाक बन गए हो। लेकिन मंटो मियां को इससे क्या फर्क पड़ता था। उन्हें बस लाइक्स और वेव्स नजर आ रहे थे। उन्होंने फौरन फैसला किया कि अब रोजाना वीडियो बनाएंगे। उन्होंने अगली वीडियो का उन्वान रखा, मैं आज जिनसे बात करूंगा। छन्नो को बुलाया गया बतौर कैमरामैन। छन्नो ने हंसते हुए कहा, मंटो मियां कहीं वाकई जिन ना निकल आए। मंटो मियां ने कमरे की लाइट बंद की, मोमबत्ती जलाई, मोबाइल की टार्च ऑन की और संजीदा आवाज में बोलना शुरू किया, ए मोबाइल के जिन, अगर तुम हो तो सामने आओ। इसी वक्त रानी बेगम ने अचानक दरवाज़ा खोला। रोशनी पड़ी और मंटो मियां चीख मार कर उछल पड़े। मोमबत्ती गिर गई, पर्दा जलने लगा और छन्नो कैमरा गिरते गिरते बचा। वीडियो और ज्यादा मिजाहिया बन गई। अगले दिन वीडियो फिर वायरल हो गई। महल्ले वाले मंटो मियां को देखकर मुस्कुरा कर कहते, जिन वाला स्टार आ रहा है। मंटो मियां फखर से सीना तान कर चलते। अब उन्हें लगा कि वो वाकई बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। एक दिन उन्हें एक मैसेज आया, हम आपको प्रमोशन के लिए पैसे देंगे, बस हमारी ऐप इंस्टॉल करे। मंटो मियां की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, अब कमाई भी शुरू। उन्होंने फौरन ऐप इंस्टॉल कर ली। चंद मिनट बाद मोबाइल फिर अजीब हरकतें करने लगा। खूब बखुद कॉल्स लगने लगे, कॉन्टेक्ट्स को मैसेज जाने लगे और बैटरी तेजी से खत्म होने लगी। मंटो मियां घबरा गए। अरे ये जिन फिर आ गया। छन्नो ने मोबाइल देखा और कहा, मंटो मियां ये वायरस है। मंटो मियां कांप गए। वायरस? क्या मोबाइल को बुखार भी हो जाता है? छन्नो ने समझाया कि गलत ऐप इंस्टॉल करने से मसला होता है, मगर मंटो मियां ने आज ही बात ही समझी। उन्होंने सोचा कि अब इस जिन को किसी आमिल से निकलवाना होगा। वो मोहल्ले के एक जाली आमिल के पास पहुंच गए। आमिल ने मोबाइल को उल्टा सीधा झुमाया, कुछ फूंक मारी और कहा, इसमें बहुत ताकतवर जिन है, 5,000 लगेंगे। मंटो मियां घबरा गए मगर डर के मारे पैसे दे दिए। आमिल ने मोबाइल पर फूंक मारी और बोला, अब ठीक हो गया। घर आकर मंटो मियां ने मोबाइल ऑन किया तो वो बिल्कुल डेड था। ना ऑन हो रहा था, ना चार्ज पकड़ रहा था। मंटो मियां की चीख निकल गई, ओहो, जिन तो मोबाइल ही ले गया। रानी बेगम ने गुस्से से कहा, ये जिन नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मंटो मियां सर पकड़ कर बैठ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ज्यादा होशियारी भी नुकसान दे सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुराने मोबाइल के इंतकाल के बाद मंटो मियां कई दिन तक ऐसे घूमते रहे जैसे किसी ने उनका करीबी दोस्त छीन लिया हो। हर वक्त जेब टटोलते, फिर याद आता कि फ़ोन तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। रानी बेगम ने साफ कह दिया था, अब नया फ़ोन तब मिलेगा जब तुम वदा करोगे कि फजूल हरकतें बंद करोगे। मंटो मियां ने फौरन सर हिला दिया, मगर दिल ही दिल में सोच रहे थे, वदा तो कर लिया मगर शौक कैसे रोका जाए। कुछ दिन बाद उनके भतीजे दानिश को उन पर तरस आ गया। इसने एक सादा सा स्मार्टफोन लाकर दे दिया। मामू, ये फ़ोन सिर्फ कॉल और व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल करना, कोई उल्टी सीधी ऐप्स मत डालना। मंटो मियां ने फ़ोन ऐसे पकड़ा जैसे कोई नाजुक शीशा हो। बिल्कुल बेटा, अब मैं बिल्कुल समझदार हूँ। पहले दिन सब ठीक रहा। मंटो मियां ने सिर्फ 2 कॉलें की, एक छन्नो को और एक सब्जी वाले को। व्हाट्सएप पर उन्होंने एक तस्वीर भेजी जिसमें वो चाय पी रहे थे, साथ लिखा, नया फ़ोन नई जिंदगी। छन्नो ने जवाब दिया, अल्लाह करे ये जिंदगी लंबी हो। अगले दिन मंटो मियां ने सोचा कि थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया जाए। बस देखना है, कुछ करना नहीं। लेकिन जैसे ही यूट्यूब खोला, एक वीडियो सामने आ गई। सिर्फ एक ऐप से आवाज़ बदले और दोस्तों को बेवकूफ़ बनाए। मंटो मियां की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ये तो मज़े का काम है। उन्होंने फौरन ऐप इंस्टॉल कर ली। ऐप ने उनकी आवाज़ को बच्चों जैसा बना दिया। मंटो मियां ने छन्नो को कॉल की, हेलो छन्नो अंकल। छन्नो घबरा गया, कौन बोल रहा है? मंटो मियां हंस हंस कर बोले, मैं मंटो मियां हूँ। छन्नो को कुछ समझ न आया। फिर मंटो मियां ने अपनी असल आवाज़ में बात की तो छन्नो को यकीन आया। दोनों खूब हंसे। मंटो मियां को बहुत मज़ा आया। उन्होंने सोचा कि रानी बेगम को भी बेवकूफ़ बनाया जाए। उन्होंने आवाज़ बदली और बेगम को कॉल की, उम्मी, मैं स्कूल से बोल रहा हूँ। रानी बेगम परेशान हो गईं।
कौन सा स्कूल? मंटो मियाँ हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ऐप क्रैश हो गई और आवाज़ आजी बच्चों वाली, आजी अपनी हो गई। आवाज़ ऐसी अजीब बनी कि रानी बेगम डर गईं। अल्लाह, ये कैसी आवाज़ है? उन्होंने फौरन फ़ोन बंद कर दिया और दरवाज़ा खोलकर मंटो मियाँ को घूरने लगे। ये तुम्हारी हरकत है ना? मंटो मियाँ शर्मिंदा हो गए। बस मजाक था, रानी बेगम ने सख्ती से कहा। मैंने कहा था सादा इस्तेमाल करो। मंटो मियाँ ने दोबारा वदा किया कि अब कुछ नहीं करेंगे, मगर उनकी तबीयत कहाँ मानने वाली थी। इसी दिन महल्ले में ऐलान हुआ कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्विज मुकाबला होगा और जो जीतेगा इसे नया टैब मिलेगा। मंटो मियाँ के कान खड़े हो गए। अरे वाह, मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ, छन्नो ने हैरान होकर कहा। ये बच्चों का मुकाबला है, मंटो मियाँ ने दलील दी। दिल से तो मैं भी बुच्चा हूँ। उन्होंने बच्चे के नाम से रजिस्ट्रेशन कर दी। मुकाबले के दिन वो ऐनक लगाकर स्क्रीन के सामने बैठ गए। सवालात शुरू हुए। 2 जमा 2। मंटो मियाँ ने फौरन जवाब दिया। 4। अगला सवाल आया। पाकिस्तान का कौमी जानवर। मंटो मियाँ सोच में पड़ गए। शायद बिक्री। गलत जवाब। चंद सवालों में ही वो बाहर हो गए। इसी वक्त मुंतजिम ने वीडियो कॉल पर सब बच्चों को ऑन किया। स्क्रीन पर बच्चों के दरमियान एक 40 साला मंटो मियाँ नजर आ रहे थे। सब बच्चे हंसने लगे। मुंतजिम बोला, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मंटो मियाँ घबरा गए। मैं बच्चे की जगह आया हूँ। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर फैल गया। फिर से मंटो मियाँ मशहूर हो गए, मगर इस बार भी मजाक के तौर पर। रानी बेगम ने सर पकड़ लिया। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मंटो मियाँ ने आह भरी। शायद सच कह रही हो, मगर असल सबक अभी बाकी था। ऑनलाइन क्विज में बेइज्जती के बाद मंटो मियाँ ने तहैया कर लिया कि अब वो कुछ दिन मोबाइल से दूर रहेंगे। मोबाइल मेज पर रखा रहता और मंटो मियाँ इसे ऐसे देखते जैसे कोई शरारती बच्चा हो जिस पर नजर रखनी जरूरी हो। रानी बेगम खुश थीं। आखिरकार अक्ल आ ही गई। लेकिन मंटो मियाँ का दिल अंदर ही अंदर मचल रहा था। एक दिन छन्नो आया और बोला, मंटो मियाँ, आज मोहल्ले में क्रिकेट मैच है, सब लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे। लाइव स्ट्रीम? मंटो मियाँ की आंखें चमक उठीं। यानी लोग हमें लाइव देखेंगे? छन्नो ने सर हिलाया। हाँ, यूट्यूब और फेसबुक पर। मंटो मियाँ का जब टूट गया। बस एक बार उन्होंने खुद से वदा किया। वो छन्नो के साथ मैदान पहुंच गए। मोबाइल स्टैंड पर लगाया, कैमरा ऑन किया और ऐलान किया, अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मंटो मियाँ लाइव। पहले तो सब ठीक चल रहा था। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तमाशाई तालियां बजा रहे थे। मंटो मियाँ कमेंट्री कर रहे थे। ओ क्या शॉट है, ऐसा छक्का तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं देखा। लोग कमेंट्स में हंस रहे थे। अचानक एक बिक्री मैदान में घुस आई और गेंद उठाकर भागने लगी। बच्चे शोर मचाने लगे। मंटो मियाँ का जोश और बढ़ गया। दोस्तों, आज मैच के साथ बिक्री लीग भी चल रही है। मंटो मियाँ बिक्री के पीछे भाग पड़े, मोबाइल हाथ में पकड़े लाइव कमेंट्री करते रहे। अचानक उनका पाँव फिसला और वो सीधे कीचड़ में जा गिरे। कैमरा ऑन था। पूरी दुनिया ने मंटो मियाँ को कीचड़ में लत-पत देखा। कमेंट्स की बारिश हो गई। अंकल हीरो हैं। ये लाइव नहीं, लाइव फिल्म है। मंटो मियाँ उठे तो उनके कपड़े कीचड़ से भरे थे। छन्नो हंसते हंसते दोहरा हो गया। घर पहुंचे तो रानी बेगम ने दरवाज़ा खोला और मंटो मियाँ को देखकर चीख निकल गई। ये क्या हालत बना ली है? मंटो मियाँ शर्मिंदा हो गए। बस जरा सा हादसा। लेकिन असल मसला तब बना जब मोहल्ले के इमाम साहिब का फ़ोन आया। मंटो भाई, आपकी वीडियो बहुत फैल रही है, लोग मस्जिद में भी दुखा रहे हैं। मंटो मियाँ के कान खड़े हो गए। अल्लाह, मस्जिद में भी? अगले दिन बाजार गए तो हर दुकानदार मुस्कुरा रहा था। कोई कहता, बिक्री लीग के चैंपियन आ गए। कोई बोलता, कीचड़ स्टार। मंटो मियाँ का सर शर्म से झक गया। उन्हें एहसास हुआ कि मजाक मजाक में वो अपनी इज्जत भी दांव पर लगा रहे हैं। इसी शाम वो छत पर बैठे आसमान को देख रहे थे। रानी बेगम पास आकर बैठ गईं। देखो मंटो, हंसी मजाक अच्छी बात है, मगर हद में। हर चीज लाइव करना जरूरी नहीं। मंटो मियाँ ने आह भरी। तुम ठीक कहती हो, मैंने खुद को तमाशा बना लिया है। उन्होंने फैसला किया कि अब मोबाइल को सिर्फ जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी रात छन्नो का फोन आया। मंटो मियाँ, आपकी वीडियो पर एक टीवी चैनल ने राब्ता किया है, वो आपको शो में बुलाना चाहते हैं। मंटो मियाँ के मुंह से बेसाख्ता निकला, कालिफ टीवी पर। दिल एक तरफ खुशी से उछल रहा था और दूसरी तरफ बर भी लग रहा था।
अगर मैं फिर कोई बेवकूफ़ी कर बैठा तो। रानी बेगम ने संजीदगी से कहा। सोच समझ कर फैसला करना। मंटो मियाँ पूरी रात करवटें बदलते रहे। दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैं वाकई सुधर सकता हूँ? फिर कोई नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है। टीवी चैनल की कॉल के बाद मंटो मियाँ पूरी रात सोचते रहे। कभी खुशी से मुस्कुराते, कभी डर से पेशानी पकड़ लेते। अगर मैं वहां जाकर फिर कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठा तो पूरी कौम हंसेगी। सुबह रानी बेगम ने चाय देते हुए कहा, जाने से पहले एक बात याद रखना, तुम वहां मजाक नहीं, इज्जत कमाने जा रहे हो। मंटो मियाँ ने संजीदगी से सर हिलाया। बिल्कुल, आज मैं एक जिम्मेदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। छन्नो उन्हें चैनल के स्टूडियो ले गया। मंटो मियाँ ने पहली बार इतने बड़े कैमरे, लाइट्स और माइक देखे। उनकी टांगें कांपने लगे। मेज़बान ने मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। ख़वातीन ओ हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया के स्टार मंटो मियाँ। तालियां बजीं। मंटो मियाँ का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया, मगर फ़ौरन उन्हें रानी बेगम की बात याद आ गई। मेज़बान ने सवाल किया, मंटो साहिब, आप इतने मशहूर कैसे हुए? मंटो मियाँ ने हल्का सा खानिसा और बोले, असल में ये सब मेरी नादानी का नतीजा है, शोहरत तो खुद ही आ गई। सब हंस पड़े, मगर मंटो मियाँ ने बात जारी रखी। मैंने मोबाइल को खेल समझ लिया था, हर चीज़ मजाक में लाइव कर दी, मगर मुझे समझ आ गई है कि टेक्नोलॉजी फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी, बस इस्तेमाल सही होना चाहिए। ये सुनकर मेज़बान हैरान हो गया। वाह, ये तो बड़ा अच्छा पैगाम है। प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो लोग मंटो मियाँ के साथ तस्वीरें बनवाने लगे। एक बच्चे ने आकर कहा, अंकल, आप बहुत फन्नी हैं, मगर आपकी बात भी अच्छी लगी। मंटो मियाँ की आंखें नम हो गईं। उन्हें पहली बार लगा कि शायद वो वाकई कुछ अच्छा कर रहे हैं। घर वापस पहुंचे तो रानी बेगम ने दरवाज़ा खोला। कैसा रहा शो? मंटो मियाँ मुस्कुरा कर बोले, बेगम, आज मैंने जिनको काबू में कर लिया। अब मंटो मियाँ ने एक नया तरीका अपनाया। वो हफ्ते में एक बार छोटी सी मिज़ाहिया वीडियो बनाते, मगर इसमें कोई ना कोई अच्छा पैगाम ज़रूर होता। कभी सफाई का सबक, कभी बड़ों की इज्जत, कभी मोबाइल के दुरुस्त इस्तेमाल की बात। लोग उन्हें सिर्फ हंसी के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए भी देखने लगे। एक दिन छन्नो ने कहा, मंटो मियाँ, अब तो वाकई बदल गए हैं। मंटो मियाँ ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, अब मैं जिनका मालिक हूँ, गुलाम नहीं। महल्ले वाले भी अब उन्हें इज्जत की नज़र से देखते। कोई कहता, मंटो भाई, अब की वीडियो बच्चों को बहुत फ़ायदा दे रही है। मंटो मियाँ दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। आखिरी मंजर में मंटो मियाँ छत पर बैठे मोबाइल हाथ में लिए आसमान को देख रहे थे। टेक्नोलॉजी अगर अक्ल से इस्तेमाल हो तो नेमत है, वरना मुसीबत। वो मुस्करा दिए। शुक्र है मैंने वक्त पर सबक सीख लिया। और यूं मंटो मियाँ की कहानी खुशगवार अंजाम को पहुंची।